how are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Today I am going to start a new topic, a new lesson. Lesson name, a busy month, means a व्यस्त महीना. In this chapter, we will learn about different creatures. We can see different creatures like animals, birds and insects around us. So, how they are different from each other? What is the variety in different creatures? Like they are different according to their shape, their size, their color, and according to their eating habits, methods of walking, and their homes also different. So we will discuss about these things in this video. Do you know why do the birds build their nest? So birds build their nest to lay eggs and to raise their chicks. यानी जो birds है वो अपने home क्यों बनाते हैं? We are living in our home. Why do we need home? We need home to live in and to protect ourselves from the cold, heat, rain, and from our enemies, from the animals, etc. And like condition, birds build their nest to lay eggs and to raise their chicks. यानी वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, अंडे रखने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए उन्हें नेस्ट की जरूरत होती है. So we will learn about different type of nest in this chapter, and here we will discuss about a letter. Who had written the letter? Gijubhai Badeka. Who was Gijubhai Badeka? Do you know? Gijubhai Badeka was a former educator of our India. He introduced Montessori in India. He had written this letter to the children of Bhavnagar Bal Mandir, and he is introducing to the children why birds building their nest. So let's start with the chapter. Open the page number 120 of your textbook. Bal Mandir, Bhavnagar, 13 April 1936. This letter was written by Gijubhai Badeka. It is written in 1936, means from today 84 years ago. यानी आज से 84 years पहले, आज से 84 years पहले ये लेटर लिखा गया था. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. और वो बता रहे हैं कि दोपहर के 3 बजे. There are no clouds in the sky. और आकाश में बादल नहीं है. Sun is burning hot. सूरज भी गर्मी से जल रहा था. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. In summer season, birds are preparing their home. So sunbird and sparrow and then doves, they are making their nest. वो अपना घोंसला बना रहे हैं. Why they are making nest? To lay their eggs. Some of the birds have already made their nest. और कुछ birds ने क्या किया था? उन्होंने nest बना चुके थे. वो अपना घोंसला बना चुके थे. In some of the nest, the eggs have hatched. What is the meaning of hatch? Hatch means the process of production of a baby chick. यानी जो young one होते हैं, जो अंडे से अंडे फूटकर बाहर आते हैं, तो जो young one के birth के process को हम hatching कहते हैं. It means अंडे से ना. Okay. And when the birds incubating the eggs, then it hatched. Incubating means क्या होता है? What is the meaning of incubating? So incubating eggs means birds sit on the eggs they lay and give them warmth, and this makes the chicks grow and develop inside the eggs until they hatch. This is known as incubating eggs. बर्ड्स जो अंडे देते हैं उनको गर्मी देने के लिए वो डेली उस अंडों पर बैठते हैं, उन्हें गर्म रखने के लिए. और इस तरह अंदर रहने या गर्मी से ये बर्ड्स के चिक, बेबी बर्ड्स होते हैं, वो ग्रो होते हैं जब तक वो अंडा फूटता नहीं. तो ये अंडे फूटने की प्रोसेस और उसमें से चिक बाहर आने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंक्यूबेटिंग एग्स. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. अब जो young one उसमें से बाहर निकले, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें खाना देना, ये बर्ड्स का, पेरेंट बर्ड का काम होता है, पहला काम. तो वो क्या करते हैं कि वो young one को स्मॉल इंसेक्ट्स फीड कराते हैं, यानी स्मॉल इंसेक्ट्स खिलाते हैं और दूसरी चीज़ें भी, ग्रेन्स एक्स्ट्रा. इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो, मीन्स हमारे आंगन में भी, देयर इज अ बेबी डॉग. बेबी डॉग मीन्स फाख्ता. डॉग मीन्स फाख्ता एक बर्ड होता है जो इट लुक्स लाइक अ पिजन. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैचड येट. और वहाँ पर नेस्ट में दूसरा भी एग था लेकिन वो अभी तक हैच नहीं हुआ था, मीन्स उसमें से
एग में से यंग वन बाहर नहीं आते। ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। और गोपाल भाई के घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर रोड के किनारे बहुत सारे स्टोन्स थे। इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एंड इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग्स। और ये जो स्टोन्स थे उनके बीच की जगह में इंडियन रोबिन में जो काली चिड़िया होती है, कल चिड़ी बोलते हैं जिसे, तो वो इंडियन रोबिन ने वहाँ क्या किया था, एग्स रखे थे वो स्टोन्स के बीच के स्पेस में। बच्चू भाई शोड इट टू मी, बच्चू भाई ने ये मुझे बताया। आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स, और मैंने ये दूरबीन से देखा। आई सो दैट द नेस्ट वाज मेड अप ऑफ ग्रास। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। और उसके ऊपर नाजुक टहनियाँ थी, जड़ें थी, बाल थे और ऊन थी और रुई भी थी। दिस इज हाउ द रोबिन मेक्स इट्स नेस्ट। और इस तरह रोबिन ने अपना नेस्ट बनाया था, इंडियन रोबिन ने अपना नेस्ट बनाया था। What a soft and cozy home for its chick। कितना यानी आरामदायक और नरम घोंसला था उसके बच्चों के लिए। The robin is not like the crow। रोबिन क्रो के जैसा नहीं होता है, कोए के जैसा नहीं होता है। क्रो मीन्स कौवा एंड इंडियन रोबिन मीन्स कलची। इट इज नॉट लाइक द क्रो, उसका घोंसला कौवे जैसा नहीं होता है। A crow's nest is made up of all kinds of things, even pieces of wire and wood। क्रो के नेस्ट में हर एक चीज़ होती है, इवन वायर जो हार्ड यानी तार होते हैं वो भी होते हैं और लकड़ी भी होती है। I saw a baby bird in the robin's nest। मैंने एक छोटे से बेबी बर्ड को, एक छोटे बर्ड के बच्चे को दिखा, रोबिन की यंगन को दिखा उस नेस्ट में, रोबिन के नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बिग वाइड ओपन, और वो अपनी चोंच खोलकर बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, और उसका मुंह कैसा था, अंदर से रेड था। इन अ लिटिल वाइल द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट। और थोड़ी देर में रोबिन वहाँ उड़कर आता है, जो इंडियन रोबिन है वो वहाँ उड़कर आता है। इन अ लिटिल वाइल द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट। और थोड़ी देर में वो जो कलचड़ी है, जो रोबिन है, वो उड़कर वहाँ आती है। एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपनली। और थोड़े वो कुछ रखती है, वो चिक कैरी को वो बच्चे के मुंह में कुछ रखती है। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, हो सकता है कि कुछ यानी छोटे कीड़े हो सकते हैं। बाय देन इट वॉज इवनिंग, इतने ही समय में शाम हो गई। द रोबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। और रोबिन अपने यानी चिक्स के साथ, अपने बच्चों के साथ वहीं रुक गया। इन द इवनिंग एवरी बर्ड रिटर्न बैक टू देयर नेस्ट। सो रोबिन ऑल्सो सेटल देयर विथ इट्स चिक। You know that the quail sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its eggs in the crow's nest, and the crow hatches them along with its own eggs. आपको पता है कि कोयल कितना मीठा गाती है? कुकू, कोयल मीन्स कुकू, वो बहुत ही मीठा गाती है। और लेकिन वो अपने नेस्ट नहीं बनाती, वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती, वो अपने एग कहाँ रखती है, क्रो के नेस्ट में। और क्रो अपने एग्स के साथ में कोयल के भी एग्स को हैच करता है, मीन्स उनको भी सेता है। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाय। और पास में ही एक छोटा पेड़ था। इट हैज ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। और वहाँ पर एक डाली से घोंसला लटक रहा था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। और उसमें बर्ड्स भी बहुत ही अलग थे। द क्रो बिल्ड इट नेस्ट हाई अपॉन ट्री। क्रो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? क्रो बिल्ड्स इट नेस्ट हाई अपॉन द ट्री, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। वो पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर अपना नेस्ट बनाता है। And its nest is made up of cloth threads, twigs, wool, pieces of wires, etc. यानी उसके जो नेस्ट में twigs भी होती है, wool भी होती है और तार भी होते हैं, और साथ साथ में कपड़ों के छोटे छोटे पीसेस भी वो यूज करता है, चिथड़े भी यूज करता है। एंड देन द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। और डव अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं? जो कैक्टस प्लांट के कांटे होते हैं उनके बीच, और मेहंदी हेड्स में, यानी कि मेहंदी की जो मेंड होती है उसमें, मेहंदी के जो बुशेस होते हैं उनके बीच में। एंड स्पेरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। और स्पेरो मीन्स जो गोरैया होती है, चिड़िया होती है ना, वो अपना नेस्ट कहाँ रखती है? हमारे घर में या घर के आसपास। इट मेक्स इट नेस्ट एनीवेयर, ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज। और वो अपना नेस्ट कहीं भी रख सकती है घर में, कपबोर्ड के ऊपर, मिरर के पीछे, या फिर लेज पर। लेज में जो आला होता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है घर में, वहाँ पर कहीं भी वो अपना नेस्ट रखती है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ बर्ड्स आर बिल्डिंग नेस्ट एंड व्हाई दे आर बिल्डिंग देयर नेस्ट।
We will meet soon in our online session to solve your doubts and queries related to this lesson. I will send PDF of this lesson in our WhatsApp group. Till the time, thank you and have a nice day.